Dear trolls, this is a thank you from just another girl on the internet. Thank you for your good morning messages. Characterless, star, दो कौड़ी की औरत. Thank you for recognizing my work. Casting couch किया होगा इसने. Thank you for appreciating my acting. एक रात का 5 लाख दे सकता हूँ. Thank you for the rape threats and the body shaming. Thank you for being yourself and not allowing me to be me. I thank you so much for your trolls. Just thank you. Not yours, truly. Zarin Khan. First of all, congratulations Thank on the you. success of your film. Thank you, thank you. When I got a call from you, I was actually pleasantly surprised. What did you see and what made you call us? Well, मैंने तापसी का जो आप लोगों का MTV ट्रोल पुलिस का एपिसोड था वो देखा था. किस किस की देखी है तूने वाली पिक्चर? भारतीय संस्कृति का है ना तू? This is a great initiative and a great thing that MTV has come forward help us with क्योंकि we have this certain थोड़े से section of people जो जिनको पता नहीं लाइफ से क्या शिकायत है, जो लिखते हैं ऐसे पीठ पीछे छुप के, उनसे फेस टू फेस होके पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है. आप यहाँ तक जो आपकी जर्नी है हमने देखी, but acting was never a plan in your life. No, never. Right? Never. You want to be air hostess. Huh? I wanted to be a lot of other things but an actress. An incident took place in my personal life जिस वजह से मैं मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ा. What happened? My father decided to not stay with us anymore and he decided to walk out on us. And being just two sisters or me being the elder one, I had to work every day to take care of my family. And I was, I think, 17-year-old when I had my first job in a call center. You know the reason? Yes, I did know the reason and it was strange. His reason to walk out was मेरे पास 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है. But it was all the more reasons to prove ourselves and show it to him कि भाई being girls also we are quite capable of taking care of my family. Life changed after we. Yes, it did. Huh? Personal and professional life. Of course, family wise मैं बहुत change हो गई. In my head I had achieved a lot. Yeah, outside it was downhill because इतना अच्छा नहीं किया फिल्म ने जैसा हमने expect किया था और पूरा backlash मेरे पे आ गया. I think this is the reason मैं यहाँ हूँ कि मैं ये जो ट्रोल किया है मुझे उनको 1-on-1 मिलके देख सकूँ और पूछ सकूँ कि उनको इतनी हिम्मत है जो ये छुप के से एक आईडी के पीछे ये सारी चीज़ें लिखते हैं. When they come face to face, do they have the to say that to my face? When you got in touch with us, आपने हमारे को 2 IDs भी बताए थे कि इन दोनों से आपको बहुत प्रॉब्लम है बिकॉज वो काफ़ी अब्यूसिव लैंग्वेज लिखते हैं और काफ़ी आपको पर्सनली अटैक किया उन्होंने रिपीटेडली. उनमें से एक है आदिल खान जो है एट बीइंग आदिल 25 और फिट एंड बोल्ड, वो 2 प्रोफाइल से जो आपने हमें दिए. Yes. Here's the news for you. दोनों की डिटेल्स हमारे पास हैं. ये पता है कि ये जो लड़का है ना आदिल खान जो इसने लिखा है he can be behind bars. आपकी शूट से कोई गाने से ये फोटोग्राफ है आपकी. Yes. You're worse than other prostitutes. They do same work but in private and in majburi. I mean, Come Zareen, I give you 1 crore with for just 4 hours. I will movie. I wanna see you. does this break you when you read it? It is hurtful. It does affect you. गुस्सा आता है यार. बहुत गुस्सा आता है. ऐसा होता है कि ये अगर सामने होता है इनका तो मुंह ही तोड़ दें. बट पीठ पीछे कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, तो इनका आप क्या ही कर सकते हो. I mean, I'm very thankful for the fact that मेरी मॉम जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं है वरना this would really disturb her. It's devastating. Zareen, we try to get in touch with Adil. Okay. क्योंकि एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी में काम करते हैं. अच्छा. सॉफ्टवेयर कंपनी में.
कोलकाता में। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से साइबर इन्वेस्टिगेटर रितेश भाटिया ने बीइंग आदिल 25 को फेसबुक पे ढूंढ निकाला और फिर तनीषा नाम का एक फिक्शनल आईडी क्रिएट किया। With the help of social engineering, the crew managed to extract his number. इस पॉइंट पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जिग्नेश चेड़ा decided to send his special crew into the field to pose as Tanisha and meet Being Adil 25. लेकिन troll Being Adil 25 didn't appear on the day of meeting. हमने एक दो बारी कोशिश की get in touch. We weren't able to get in touch with him. और जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पर भी नहीं आए। The other guy, जिसके कमेंट्स अभी हमने नहीं पढ़े, जी, फिट एंड बोल्ड, उसके भी कमेंट्स बहुत खराब हैं, ऐसे ही हैं। फिट एंड बोल्ड एक बॉम्बे में रहने वाला लड़का है, फिटनेस फ्रीक है ऑब्वियसली। वो एक आर्टिस्ट, मैनेजर और फॉरेन डांसर्स वगैरह के ही इज इन टच विद देम एंड वो अलग अलग इवेंट्स पर उनको काम दिलवाता है एंड ही इज द एजेंट इन द मिडल। ओके, उसने कुछ जो कमेंट्स किए हैं, वील फर्स्ट रीड देम एंड देन आई विल टेल यू कि प्लान क्या है। पहला है फिट एंड बोल्ड, आपकी एक फोटोग्राफ है और ये लिखा है उसने, Zareen looking at her when thinking, oh, इसके बारे में मैं क्या ही जवाब दूं? अगर मैं तुमको बता भी दूं क्यों कैसे होगा, क्या तुम उसको अपने आप पे यूज करके अपने करना चाहते हो? क्या मतलब चाहते क्या हो? इसका मैं क्या ही जवाब दूं अभी? It's strange. फिट एंड बोल्ड कह रहा है ऐसे भी you looking like a hashtag I don't. इस वाले में उसने बॉडी शेम भी किया। फिर एक और है, बहुत स्वीट सी फोटोग्राफ है आपकी। Zareen Khan looks stunning. She can clean up well. Despite my mom harsh opinion that she is hideous. Hashtag Kamwali Bai. What all emotions are going on? दिमाग में क्या चल रहा है अभी? मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी अपब्रिंगिंग पे थोड़ा सा क्वेश्चंस रेज होते हैं कि भाई ये कैसे माहौल में बड़े हुए हैं जो ये ऐसी बातें करते हैं। समवेयर मुझे ये भी लगता है कि शायद बेचारे को दिमागी प्रॉब्लम होगी, तो जो मिल के हमको पूछ के दूर करनी चाहिए। नेक्स्ट है एक, जिसने लिखा है शी थिंक्स दैट हर ट्रोलर्स आर हर फैंस टू, हा हा हा, और हैशटैग लिखा है तेरे नाम का कुत्ता भी ना पालूं। कुत्ता पालो ना पालो, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से आप इतना टाइम निकाल रहे हो कि मेरे अकाउंट पे आके ये लिख रहे हो, तो मतलब मैं तुम्हारी लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंट तो हूँ। इतने सारे कमेंट्स। नेक्स्ट वाला है Zareen Khan is the outcome when I am sorry, I think they're monstrous people. Okay. और उन्होंने कहा I respect और parents. हैशटैग I respect parents. तो वही तो ना दिमागी प्रॉब्लम है, तो ये इंसान को मदद चाहिए जो आई थिंक हमको करनी चाहिए। Ready to see what he does? Yes. Who he is? Fit and Bold is from the entertainment industry और वो इवेंट्स के लिए इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स प्रोवाइड करता है। क्रू ने फिट एंड बोल्ड को बोला कि वी आर लुकिंग एट डूइंग बिग इवेंट्स अक्रॉस इंडिया और इसीलिए हम उसे हायर करना चाहते हैं। Fit and Bold believed this story and then the crew member went to meet him. आपका जो ट्रोल है जिसे आप मिलने वाली हैं फिट एंड बोल्ड, उसका नाम है गिरिराज केडिया। सिर्फ 23 साल का है। एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन है जो रिकॉर्डेड है। सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस गाय एंड इसके क्या विचार हैं, किन चीज़ों के बारे में क्या सोचता है, वो भी आपको पता लगेगा। अच्छा। रेडी टू सी हिम? बस मैं जैसे कि मतलब वैसे तो राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, बट कैलकाटा बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ और पिछले 4 साल से बॉम्बे में हूँ। 2013 में मैं मुंबई आया और तब से यहीं पे हूँ अपना। तो क्या कर रहे हो अभी बॉम्बे में? इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स। What does he do on international events? I want to know. We'll find out ना। शायद तो यहाँ से बाहर करूँ या फिर पैसा कमाना है तो घर पे कौन कौन है आपके? डैड। सिर्फ डैड है? सिर्फ डैड। सिंगल चाइल्ड? यस। मदर को क्या हुआ आपको? सॉरी, मॉम एक्सपायर्ड इज लाइक 4 years बैक। Oh my God! इनकी मॉम, she is no more. और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि my mom also finds you hideous.
know what? I've never seen somebody talk about his parents so coldly. मतलब there's no emotion. गर्लफ्रेंड रही नहीं है कभी? ब्रेकअप हो गया, कुछ था सर्कमस्टेंसेस। चीट किया तूने उसने? नहीं, उसने किया। उसने चीट किया। हाँ, तो कैसे पता चला तेरे को? मैंने देख लिया था। किसी और के साथ घूम रही भी? हाँ, नॉट ओनली घूमना, मैंने किस विस करते थे? देख लिया था। फिट एंड बोल्ड AKA गिरिराज केडिया ट्रोल पुलिस के क्रू मेंबर से आज पहली बार ही मिला है एंड इट वॉज शॉकिंग टू सी कि मीटिंग के दौरान वो अपने पर्सनल डिटेल्स उसके साथ क्यों शेयर कर रहा है। उसके बाद से मैं थोड़ा सा और ज्यादा वो हो गया। कोई दोस्त वोस्त नहीं तेरा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी पे विश्वास नहीं करता? नहीं, विश्वास तो बहुत दूर की बात है। क्यों? बहुत दूर की बात है। मदर के जाने के बाद थोड़ा इफेक्ट हुई लाइफ, मतलब एक्चुअली नहीं। क्यों? पीपल से मेरे सारे फ्रेंड बोलते यू आर अ कोल्ड हार्टेड। ठीक है, सीरियसली, बिकॉज आई वॉज अ गाय। जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई मैं रोया नहीं था। What are you saying, bro? यस, सीरियसली, आई एम लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कोल्ड हार्टेड हूँ। Trolls are usually two-faced, और गिरिराज केडिया AKA Fit and Bold is yet another example of one. वो ऑनलाइन कुछ है लेकिन रियल लाइफ में कुछ और दिखता है। कोल्ड हार्टेड होना इज नॉट बैड, बट कोल्ड हार्टेड होकर आप दूसरों को डिमीनिंग मैसेजेस भेजते हैं, दैट्स नॉट कूल। We have to first figure out क्या इसको आपसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है या इसके लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये कर रहा है। So I'm going to tell you what the plan is. As per the plan, ट्रोल गिरिराज आज एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए किसी इंपॉर्टेंट इंसान से मिलेगा to be hired for an international event. लेकिन he's going to be stunned to see who he will be sharing a ride with. जरीन खुद उसको मिलेंगी। Upon seeing her, will he continue to be गिरिराज केडिया or will he transform into the Fit and Bold? Let's find out. This is the car. It's fully rigged in. There are mics and cameras inside. हमारा जो crew member है वो जाके उसको उसका coordinate करेगा. He'll make him sit in the back with you. You know what to do. Yes. कुछ भी हो जाए, don't worry. I'm in the other car just behind you guys. Okay. All right. Okay. We'll be tailing you guys, and because I will get the full feed. मेरे को ऑडियो और विजुअल दोनों है, मुझे पता है इस गाड़ी में क्या हो रहा है. I can see you guys also, and I can hear you guys also. Okay. All right. Best of luck. Hello, see you. Yay, let's do this. अभी जरीन और उसके मैनेजर आगे वाली गाड़ी में विद क्रू मेंबर, ये उनका फीड है और वो जो बातें कर रहे हैं वो मेरे को सुनाई दे रहा है। अभी हम जाकर जो ट्रोल है उसको पिकअप करने वाले हैं। Hi. So, ma'am, he's the guy. Hi, nice meeting you. नाइस मीटिंग यू, प्लेजेंट सरप्राइज। You over here? Yeah, how are you? I'm good, thank you. How are you? I'm good. I didn't expected you. इसको देख के लग नहीं रहा कि ये जरीन के बारे में इतनी खराब चीजें लिखेगा। So I am planning this show for me. It is Okay. very confidential right now. हाँ, उसने मेरे को आपके बारे में नहीं बताया कि आप प्लान कर रहे हो। नहीं, इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि बहुत confidential है अभी ये। It's a worldwide dance show that I want to bring in Live together. concert kind? Live concert kind. Okay. So I am targeting at US, Canada and Australia. Now we are heading towards this lounge. वहाँ पे जो हमारे event की जो financiers हैं वो सब है. Okay. Do you have any agency as such on your? Yes, I have my own अच्छा, company. oh, nice. Events मैंने बोल के मेरी खुद की कंपनी है। Wow. तो ये जो आप आर्टिस्ट लाते हो, डांसर्स लाते हो, are they already trained or you get them here then No, you they are train? really trained. They are Okay. celebrities actually. वो हॉलीवुड के celebrities हैं जिनको मैं लेके आता अच्छा. फिर उनके तो चार्जेस बहुत होते होंगे. हूँ। और अभी रिसेंटली जो मैं कर रहा हूँ जिसके पीछे मैं लगा हुआ था, हाँ. that is something around 80 lakh to 1 CR. Wow. काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, काफी फेंक भी रहा है कि मैं 80 lakhs 1 करोड़ के वो करता हूँ शोज। मैं छोटे आर्टिस्ट को मैं वो नहीं करता। अच्छा. आई मोस्टली टारगेट इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो बड़े लेवल पे हैं। अच्छा, जैसे कि कौन से क्योंकि इंटरनेशनल? जैसे अब वर्ल्ड ऑफ डांस का जो विनर था, अच्छा. इयान एशवुड, अच्छा. वो मेरी कंपनी में साइंड है। अच्छा. ठीक है। मैट शिफानिया जो वर्ल्ड ऑफ डांस का जज है। कोई आइडिया नहीं है इसको कि MTV ट्रोल पुलिस पर है। अभी बस
इम्प्रेस करने के चक्कर में कि मैं सिर्फ बड़े आर्टिस्ट, कौन बोलता है ऐसा है कि मैं छोटे आर्टिस्ट के साथ काम नहीं करता, मैं सिर्फ बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ. सो ही ट्राइड टू टेल जरीन कि मुझे पता नहीं आपका क्या सीन है, पर मैं बड़े बड़े लोगों के साथ ही करता हूँ. वो तो मतलब ऐसे, हाउ डू यू गेट इन टच? ईमेल लिखो अच्छे से. हॉलीवुड के एक्टर्स का ये बेस्ट है कि मतलब चाहे वो कितने भी बड़े हो, मैं उनको मोस्टली जल्दी एक कन्वर्सेशन के बाद सेकंड टाइम मैं बात करता हूँ. वाह, एक कॉन्वर्सेशन, एक मेल के बाद सीधा हॉलीवुड एक्टर्स पे बात करते हैं हमारे ट्रोल के साथ. They are really good. International artists are really good. मतलब I'm like कि मुझे पहले I should हम thank नहीं अच्छे लगते आपको हमारे साथ? मतलब नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, बॉलीवुड आपसे एक्टर्स direct के बात साथ नहीं नहीं होती ना. काम करना. मैं आपको कैसी लगती हूँ एज एन No, एक्ट्रेस? it's not like that. मैंने ज्यादा मूवी देखी नहीं है. अच्छा. मैंने सिर्फ वीर देखी. नहीं, मैंने वैसे भी ज्यादा मूवी की भी नहीं है कि आप मेरी ज्यादा मूवी देखो. मैं क्या लगता है एक्टिंग में मैं कमेंट नहीं करूंगा कि आपकी एक्टिंग कैसी है ऑल. आई वोंट कमेंट ऑन दैट बिकॉज़ दैट्स अ प्रोफेशन को आप ज्यादा अच्छा जानोगे मेरे से. कई महीनों से फिट एंड बोल्ड AKA गिरिराज अपने स्क्रीन के पीछे छुपकर जरीन के प्रोफाइल पे कमेंट्स करके उनको इमोशनली हर्ट करता आ रहा है. गिरिराज lacks empathy. He only cares about one thing, himself, his opinions, his feelings. Today the tables will turn. अब ये देखना है कि जब उसको ये पता चलेगा कि वो ट्रोल पुलिस पे है, will he be cold and distant or he'll get aggressive? Let's find out. I'll just see you. Yeah, no Okay? problem. Okay. See you. Yeah, bye. Nice meeting you. Same You're here. coming, I'm right? coming up. Okay, I'm yeah. coming up. All right, guys, he's fallen for it. He will realize now कि वो MTV troll पुलिस पर है. It's time to go. Good job, good job. Thank Very good. you. Well done, well done. उसको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ. जी. And he's gone up now. Let's go and see what to do. आज ट्रोल पुलिस में जरीन आई हमारे पास विद द नेम ऑफ हर बिगेस्ट सीरियल ट्रोल फिट एंड बोल्ड. ये ट्रोल पिछले कई महीनों से जरीन को ऑब्नॉक्शियस मैसेजेस भेजता आ रहा है. ट्रोल पुलिस की टीम हैज मैनेज्ड टू अनकवर हिज रियल आइडेंटिटी. Today is the moment of truth when troll Giriraj will come face to face with his online target Zareen Khan. ट्रोल पुलिस के क्रू ने एक कोलाज डिजाइन किया है. इस कोलाज में फिट एंड बोल्ड का हर नास्टी कमेंट, हर सेक्सिस्ट और मिसोजिनिस्टिक पोस्ट लगाया है. Cameras have been installed at the location to capture Giriraj's reaction. अब देखना यह है कि does he try to deny this or does he own up to his mistakes? Ranviche and Zareen will be monitoring the situation from the control room. आपकी जो मैनेजर है, she is going to get him to this room. Yes. पूरे हर तरफ से कैमरा लगाया हुआ है और ये आपकी सब फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं with all the comments जो इसने लिखे हुए हैं. जी. एक पॉइंट पे जब उसको रियलाइज हो जाएगा कि ये उसके कमेंट्स हैं and कुछ गड़बड़ है, I will send you. Okay. आप जाइए, बात करिए, confront him और जब सही टाइम होगा I will come in there with the cameras. Okay. I think he's on his way up. There he is. Zareen. You want to sit here? Yeah. I'll just be back in a minute. I'll check on Zareen and come Okay. back. Yeah. Chalo, let's see how long it takes for him to notice things. Giriraj thinks he's here for a meeting, but he has no idea he is on troll police and what's in store for him. Okay. अब उसको समझ आ गया है, सांस आना बंद हो गया इसको. अब उसके पैरों तले जमीन उसको समझ ही चुकी नहीं आ रहा है, है. उसको समझ लग नहीं आ रहा कि वो क्या मार खाएगा. है. वो सब जो वो था ना कॉन्फिडेंस, सब चले गया है. Okay, Zareen, go. Okay, so I think it's time to do this. Best of Okay. luck.
I've seen. So, what do you think of this wall? Looking good. It's looking good. और आई थिंक आपके जो कमेंट्स है वो तो ये वॉल पे 4 चांद लगा रहे हैं ना। बोलो कुछ तो बोलो, ये सब आपके लिखे हुए हैं या किसी और, या हैक हो गया था अकाउंट? और मेरी लिखी हुई है। क्या देखना था वहाँ पे? ते वैसे भी you're looking like, क्या देखना क्या था आपको? That was like a comment and like compliment, you know. That's a compliment. So you think being a is a compliment? That was for the separate picture. It's like character for the characterization. मतलब it's like a character. So that. And hashtag I don't. Okay, that one. That one I was having a word with my friend actually on that time. और उसको मैं लिख रहा था साथ में, मैंने फिर वो कॉपी पेस्ट यहाँ पे ही मार दिया। ये जो हॉलीवुड एक्टर्स, जो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ ही सिर्फ काम करते हैं, वो आपको लगता है कि ये सारी जो ये आपकी जो थिंकिंग है, ये देखने के बाद आपके साथ काम करेंगे? आपको लगता है आपकी कंपनी चल जाएगी उसके बाद? यस उससे इससे कोई मैटर नहीं करता मेरी कंपनी का प्रोफाइल पे। आर यू ओके इन योर माइंड? यू नो, आपको समझ में आ रहा है? यू नो, आप जो है ना, वो या तो आप अपने लिए बहुत बड़ा खतरा हो या तो सोसाइटी के लिए। No, मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास, मतलब not ये टाइम पास है। ये अगर मेरी माँ रीड करेगी क्या सोचेगी? मेरी बहन रीड करेगी। एग्जैक्टली। सो यू नो व्हाट, आई थिंक यू नीड हेल्प, यू नीड मेंटल हेल्प। I don't think so. अभी गाड़ी में आप मेरे से इतने अच्छे से बात कर रहे थे। I am that person जो यू आर दैट पर्सन और यू आर दिस पर्सन? Obviously I'm that person जो अच्छे से बात करता है। तो ये कौन है? Kind of like time pass. ये टाइम पास है। अभी मैं आपको थप्पड़ मार दूं टाइम पास के लिए? हाँ? I'm not getting physical. मैं physical नहीं Of किया। course you won't get physical here because if I become physical on you, my hands are bigger than your entire size. I'm gonna go. Welcome to MTV Troll Police. यहाँ पर आज कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई प्रोडक्शन मीटिंग नहीं हो रही, कोई इवेंट मैंने नहीं हो कॉल रही। मीटिंग के लिए आया हूँ। मेरी दूसरी मीटिंग है, मैं वो छोड़ के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तेरा काम होगा अभी। मैं उसको छोड़ के यहाँ पे। नाम क्या आपका? गिरिराज केटिया। फिट इन बोल्ड कौन है? It's like that's my handle. He's fit and he's आपका है? bold. Yes. तो पता है जेल पता क्या होती है? जेल तो पता होगा। जो तूने यहाँ पे चीजें लिखी है ना, अगर आज तेरे खिलाफ FIR लिख दे, the cops waiting, she just has to say yes. वैसे भी you're looking like a का मतलब समझता है तू? Defamation समझता है? तुझे लगता है मजाक हो रहा है ना? टाइम पास के लिए इसको पुलिस में दे दे, हम भी थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं इसकी लाइफ से। He doesn't care about his life. आपको पता है? First you have to figure out whether he understands if it is good or bad. He is not understanding. Yeah. This is bad. You know what? It is not freedom of speech. ये आपका ओपिनियन आपके घर में नहीं है, अपने दोस्तों के बीच में नहीं है, या आप किसी और के घर में घुस के उनके लिविंग रूम में जाके उन पे गालियां, जब गालियां दोगे ना किसी को जाके, तो सीधा पुलिस के पास जाते हो। Do you understand? आपने क्या लिखा है? हाँ? पढ़। वाला पढ़। सबसे पहला वाला पढ़, जोर जोर से पढ़। Zareen Khan looking at a thinking, oh. आगे क्या? Straight out of Kamatipura. समझा? What do you insinuate? क्या मतलब क्या है इसका? मैंने वो क्यों लिखा था मैं बताता हूँ कि इस टाइम पे लाइक आई हैव सीन लॉट्स ऑफ थिंग्स कि मतलब लोग सर्जरी करवा रहे होते जाके। ओके सर लाइक कि या इट्स गुड, मतलब नेचुरल, मैंने उस हिसाब से वे में लिख दिया था कि हाँ ठीक तूने है। ऐसे लिखा है गुड? मतलब आई हैव सेड कि लाइक बेवकूफ तो नहीं समझ रहा ना मैं? बेवकूफ तो नहीं लग रहा मैं, या ये नहीं ना? तो वो बात देख, अगर तू वहां पे पहुंच जाएगा ना, एक बारी अंडरस्टैंड कर लेगा तूने क्या किया है, तो ये आसान हो जाएगा। अगर तू इर्द गिर्द घूमता रहेगा तो मेरे को समझाना पड़ेगा या इसको समझाना पड़ेगा, योर
और जिस तरीके से हम समझाएंगे वो तो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। तेरे को पता है ये क्या है ना, इंटरनेट पे ट्रोलिंग होती है, you're a troll. I'm like that troll. When you say that ना, that hashtag, maybe you're looking like a, और hashtag क्या लिखा है? I don't. क्या हुआ? मैं क्या? Body shaming? हाँ? I know that. पहले तो मेरे को ये बता कि मेरे को क्यों बुलाया मैंने, मतलब ऐसा क्या कर लिया जैसा तेरे सामने? Like I don't think. मुझे का मतलब समझ। Gali, I don't think so. क्या होता है? Like there are many girls who work for like they for पैसों के लिए, काम करने के लिए वो करती है। Prostitute हाँ। is a, That's a profession. वो उनका प्रोफेशन तूने है। तो तो इसी ये मेरा प्रोफेशन का है। तू ये मत बता, तू मुझे ये बताने की कोशिश मत कर कि तू लोगों की जो रिस्पेक्ट करता है उनके काम की, क्योंकि तूने एक में लिखा है काम वाली बाई, यू डोंट रिस्पेक्ट एनीबॉडीज वर्क, डोंट गिव मी बुलशिट, यू कैन बी ऑन द एज फॉर एज लॉन्ग। कोई लड़की अगर काम कर रही है, एक्टर है, आपने बोल दिया इज इक्वल टू प्रोस्टिट्यूट। हाँ, और वही प्रोस्टिट्यूट से तो कितने अच्छे से बैठ के बातें की गाड़ी में, वही प्रोस्टिट्यूट के साथ मीटिंग करने आया था क्योंकि वही प्रोस्टिट्यूट पैसे देने वाली थी, तो मतलब क्या वो चलेगा, वो ठीक है। तो पता है लोगों पे क्या इफेक्ट होता है इसका? When you say that ना, that hashtag, वैसे भी you're looking like a, क्या हुआ? मैं क्या? body shaming? तूने अपनी बॉडी देखी है? तू मेरी बॉडी पे कमेंट कर रहा है? बहुत अच्छी है मेरी। कहाँ से? क्या अच्छी है? 4 फुट का तो है तू। What is your stature to comment like this on me? कौन पहचानता है तेरे को? है कौन? तूने यहाँ पे बोला है she thinks that her trollers are her fan too, तेरे नाम का कुत्ता भी ना पालूं। मेरे नाम का तू कुत्ता नहीं पालेगा, लेकिन मेरे पैसों के लिए काम करने यहाँ पे बराबर आया तू। हम करें ट्रोल आपको? एक तो एक औरत को तू बिना बात पे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, तो कितने सारे, क्या बात है यार, उसका भी दिल है यार, वो भी पढ़ती है, उसकी मॉम पढ़ती है यार, कुछ रिस्पेक्ट है कि नहीं दुनिया के लिए आपको? जैसे ये वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरी, इफ आई डिडंट हैव अ मम, मैं उनके बारे में सोचते टाइम ही मेरे को थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन तुमने उनको एक खराब घटिया चीजों के बीच में लिख दिया उनके बारे में। ये वाला क्या है? ज़रीन खान इज द आउटकम, बोलो बताओ, समझाओ। ज़रीन खान इज द आउटकम व्हेन #I respect parents। क्या हो गया भाई? दिमाग खराब है? ये पढ़ के हंसी आ रही है तेरे को? मैंने वो कमेंट के नीचे इसलिए वो I respect parents दिया because that's क्योंकि you don't respect parents that's for not your and not your parents too, because you definitely don't respect your parents। क्योंकि अगर आप अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते तो अपनी मॉम जो अभी इस दुनिया में है भी नहीं, उसको यहाँ पे इन्वॉल्व किया हुआ है। मतलब तुम हो क्या चीज? ना माँ बाप है, ना दोस्त है, ना गर्लफ्रेंड है, अकेले होके ये पागल हो गए हो क्या? I can delete that, I can go and delete it। नहीं, I can go and delete it। नहीं डिलीट कर सकता यार तू। Can I give you one tight slap and then you will delete it from your memory? Can you do that? Because this is exactly what has happened to me. This is like a slap to me. This is like a slap to my mother. This is like a slap to my family. तो जिस तरीके से आपने मेरे को अपनी बातों से चाटा मारा है, मैं अभी आपको अपने हाथों से चाटा मार देती हूँ, फिर हिसाब बराबर कर लें। Tell me, ये तो टाइम पास के लिए लिखा है और ये तो मतलब फन के लिए लिखा है, and you are going to delete it because it's no big deal. So I will give you one tight slap now, and then it's all equal. Is it okay? Is it okay? No, obviously not। Of course not, right? Then why is this here? Who the gave you that right? Who the gave you that right? No one। No one. So how the can you write it here? तू एक तमाचा मुंह पे अभी। हाथ है ना मेरा, तेरे मुंह से बड़ा है। कहाँ जबड़ा टूट के गिरेगा पता भी नहीं चलेगा। I'll go and delete it, he's saying. I What is really she can't going take for? this. I swear I'm gonna hit him. You please handle this. क्या प्रॉब्लम? फिर क्यों करता है? You're not the first person I'm meeting in my life who's like this. Understand this. कोई बात नहीं, इसमें कुछ खराबी नहीं। आप अगर किसी किस्म के हो, उसमें कुछ खराबी नहीं है, बट आपको वो समझना पड़ेगा। इस बेचारी ये गलती है यार, वो 17 साल की उम्र से उसके डैड नहीं है, छोड़ के चले गए।
काम कर रही है, अपनी फैमिली का मतलब पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पैसे नहीं थे पढ़ाई के, कॉल सेंटर में जॉब की उसने अपनी माँ और अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए, और तू उसको ऐसी ऐसी चीज, ये चीजें लिख रही है, तू ये चीजें लिख रहा है यार। यू कॉल्ड हर अ प्रॉस्टिट्यूट। I didn't mean that. यार तू है ना 23 साल का, मर्द बन, अपनी बात मान, अपनी बात पे अड़ तो सही कि हाँ यार मैंने किया गलत है या सही है वो बाद में देखेंगे, बट तू तो कह रहा है मैं आई डिड मीन इट। सिर्फ 23 साल का है, यू नो, एंड द वर्ल्ड इज हिज ऑयस्टर नाउ। उसको अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। इतनी कम उम्र में वो ये सारी चीजें कर रहा है। आई रियली डोंट नो मैन, आई फील सॉरी फॉर हिम। तेरी जिंदगी में अगर प्यार नहीं मिला मॉम डैड से या कुछ हो गया और फिर तूने सब जो दारोमदार था अपने लाइफ के इमोशंस का वो तूने अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ में थोप दिया, बट तू इतना ओवरबेयरिंग और ऐसा आदमी है जो किसी के बारे में सोचता नहीं है कि उसको भी ब्रेकअप करना पड़ा, ऐसा कुछ हो? फिर ब्रेकअप क्यों हुआ? She cheated on me, so that's it. आजकल किसी को सच्चा रिलेशनशिप से मतलब नहीं होता। People go through so many bigger things in life, you know. मैं भी एक ऐसी फैमिली से आती हूँ वे जब मैं अपनी जिंदगी समझने की कोशिश कर रही थी तभी मेरे डैड हमको छोड़ के चले गए। उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पागल हो गई और मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ। हाँ मैंने चलो ठीक है इनके ऊपर किया, मैं मानता हूँ मैंने किया, बट इनफैक्ट आई सेड दिस टू माय फ्रेंड्स आल्सो, लॉट्स ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो। तू जितना चौड़ा होके बोल रहा है, यू प्राउड ऑफ इट? ना आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, कि हम लोग जस्ट फन में लेते हैं काफी चीजें। यार तू दुनिया के सामने कर रहा है यार, उसके इतने मिलियन फॉलोअर्स के सामने कर रहा है, यू गॉट इट। लोगों को लगता है कि इंटरनेट पर जाके कमेंट करना हार्मलेस है, लेकिन कई लोगों की जिंदगियां खराब हो रही हैं। When somebody is down, you're kicking them. ये इंसानियत नहीं है। तेरे जिस दिन बुरे दिन चल रहे हैं उस दिन तेरे को चाहिए कि मैं आके तेरी मदद करूं, उस दिन आके मैं मारूंगा तो तेरे को समझ आ रहा है डिफरेंस? You know, ये ऐसे जो लोग हैं, ये जो ट्रोल करते हैं अपने घर की चार दीवारी में बैठ के, ये नहीं समझते कि ये हम जो हैं, हम इसको जब रीड करते हैं, हमारे साथ साथ हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे सारे दोस्त ये सब रीड करते हैं एंड इट मेंटली अफेक्ट्स, यू नो। मैं एक स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ, मेरी मॉम इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडेड नहीं है। अगर वो ये सारी रीड करती शी वुड बी रियली ट्रॉमेटाइज्ड। सर कैन आई गो वाटर प्लीज? पानी दो। Okay? I'm okay. Is he okay? Let's see. You know, अभी तो मैं बहुत गुस्से में यहाँ से गई, बट मैं जब वहाँ जाके कॉन्वर्सेशंस आपके देखे गए, मुझे आप बहुत ही सहमे से इंसान लगते हो। आपको बहुत प्यार की ज़रूरत है और आप ये जो करके है ना, आपको ऐसे लगता है मैं बहुत कूल हूँ और मैं सबको, वैसे भी मेरे को नहीं है तो मैं और लोगों को पुश करता हूँ। क्यों भाई? क्या बुरा है? क्या बुरा है लोगों से? क्योंकि जो नेगेटिविटी है ना वो दिख रही है। तूने तेरी सब एक जैसे नहीं होते ना बाबा। अगर आप हर एक इंसान को एक ही नजरिए से देखो तो फिर तो आप इस दुनिया में रह भी नहीं पाओगे। इतनी बुरी जगह है ये फिर ये दुनिया। लोगों को जानना सीखो। आपकी जो गर्लफ्रेंड थी वो आपको पैसे की वजह से छोड़ के गई थी। Obviously she said me many times. क्या? यार मतलब तो ये I want a rich guy, I want a rich guy. तो इसीलिए आप इस पहुंच गए हो कि मैं भी किसी से अटैच नहीं होऊंगा, मैं बस पैसे बनाऊंगा। मैं कर क्या रहा है? कहाँ बैठा है? करेगा क्या उसका? Happy with that. Alone. My life, yes. तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में तो मेरे साथ सिर्फ बुरा ही हुआ है तो ये तो गलत है। बुरा तो हर एक इंसान के साथ होता है। उसका मतलब ये नहीं कि वो ये बन जाए। इंसानियत कहाँ गई आपकी? पैसे तो बना लोगे, उसके बाद कोई आपको पूछेगा भी नहीं, वो पैसे का क्या अचार डालोगे? क्या है? किस चीज का गुस्सा है? We are all here to help you. बैठ जा। आज अभी इस वक्त तेरे को अपने बारे में इनको देख के क्या लगता है कि करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, इनको क्या, किसी को भी नहीं करना। पछतावा हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए था? Yes. आगे जाके करेगा किसी के साथ भी? क्योंकि मेरे को पता तूने और लोगों के साथ भी किया। नहीं। इसको सैडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं। किसी और को बुरा भला कहने से अपने आप को अच्छा फील होना एक सैडिस्टिक प्लेजर होता है।
और आपको ये मौका पता है मतलब जब मेरे डैड गए ना, मैं सिर्फ 17 साल की थी। एज अ गर्ल जो आपने लिखा है ना, वो मैं सच में हो सकती थी, लेकिन आई चोज नॉट टू बी वन। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट? मेहनत करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं तो अपनी मॉम से बहुत क्लोज हूँ, और ये मेरी मॉम देखती तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड इट बी। मेरा तो दिल दुखा रहा है, चल मैं तो स्ट्रांग हूँ, एक माँ का दिल दुखाएगा। यू थिंक यू विल एवर गो अहेड इन लाइफ? बदुआएं लेके आगे जाना है। सो हियर्स द थिंग, दो चीजें हो सकती हैं। या तो आप जैसे आपका एटीट्यूड था उसमें बोल दीजिए कि हाँ मैंने किया, मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, देन शी विल डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू। दूसरा ये कि अगर आपको सच्ची में ऐसा लगता है कि आपने वो गलती की, एक मौका हम दे सकते हैं। इफ यू आर अपोलोजेटिक देन एक्ट ऑन दैट। डू यू फील बैड? Obviously, I'm feeling bad. Yes, I should have done that. तेरे पास मौका है, इफ यू वांट टू अपोलोजाइज। I'm sorry. I can just say कि I'm sorry. I will not do this again ever. किसी के साथ नहीं करूँगा मैं, never. सबसे खराब कौन सा तेरे हिसाब से? सभी खराब है। उसको उतार और उसका सॉरी एक बार बोल, और फिर एक एक करके ये क्लोजर चाहिए हमें और तुझे भी। I have written this and I'm sorry for that. Not only for this, for everything. I'm sorry for that. नेक्स्ट वन। I'm really sorry. I'm sorry for this also. Again, I'm sorry for this. I didn't mean to like hurt you, your parents or someone. So I'm again sorry for this. And yeah, I shouldn't have said this. बैठो। जरीन, अगर आपको लगता है कि इनकी जो अपॉलॉजी थी दैट वाज गुड इनफ फॉर यू, देन यू टेक अ कॉल। See, honestly this is something really hard to forget, but since you know मेरे को लगता है कि he is directionless, you know, उसकी लाइफ में कोई है नहीं जो उसका हाथ पकड़ के उसको बताए कि भाई ये गलत है, ये सही है। इस वजह से मे बी गुमराह हो गया है। That is the reason, you know, I want to forgive him. There is another thing. We have a counselor, psychologist है, निराली, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। And I just wish you all the best. इतनी आपने मेरे बारे में चीजें लिखी है ना, मैं उसके बावजूद भी आपको माफ करती हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ आप अपनी जिंदगी का कुछ अच्छा कर लो। Thank you. I will surely not do this again. थैंक यू अगेन जरीन, आप MTV ट्रोल पुलिस के पास आई, वेरी ब्रेव ऑफ यू। और आई हैव टू से इतने खराब कमेंट्स मैंने आज तक नहीं पढ़े थे, एंड आई डोंट नो हाउ यू हैव जस्ट स्टॉर्म थ्रू देम। और आज का जो ट्रोल था ना गिरिराज, उसको ये पता भी नहीं था कि उसके जो वर्ड्स जो वो ऐसे लिख देता है उसका क्या इफेक्ट होता है। Exactly. दैट्स वाई हमें कुछ समय लगा उसको ये समझाने में। अंत में जब वो समझा, ही रियलाइज कि उसके अंदर की जो कमी है उसकी वजह से उसने वो लिखा है। बट थैंक्स अ लॉट। Thank you so much MTV Troll Police and Ranvijay for having me. This was great. Thank you so much.